कई जगह मैं ये बोल चुका हूँ, कमांडो इज एन एटीट्यूड, इट इज जस्ट नॉट योर बिल्ड। मैं कभी सलाह ऐसा कोई पहलवान मिलवान कभी नहीं रहा, बट आई वाज पहलवान फ्रॉम हियर। बैम्बू में पानी सीप इन होता है, उसके नॉट्स में से पानी सीप इन होता है और अंदर पानी भरा रहता है, एंड इट इज फ्रेश वाटर। यू कैन गेट वाटर फ्रॉम द बैम्बूज आल्सो। एक एम्बुश में बैठे थे, वी वर वेटिंग फॉर द मिलिटेंट्स टू कम। हमने एम्बुश लगाया था और मिलिटेंट तो आया नहीं, भालू आ गया। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज हैज एक्चुअली आइसोलेटेड पाकिस्तान एज फार एज दिस टेररिज्म इज कंसर्न। So this is one of the proactive stance. दोस्तों, द आयरॉनिक शो के एक और डिफेंस स्पेशल में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला एनएसजी स्पेशल एपिसोड है। एनएसजी या ब्लैक कैट कमांडोज इंडियन आर्मी के वो स्पेशल फोर्सेस हैं जो एंटी टेरर ऑपरेशंस के एक्सपर्ट होते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएसजी और इंडियन आर्मी के एक लेजेंड कर्नल तुषार जोशी। अगर आपको 2002 का अक्षरधाम टेरर अटैक याद है, उसमें भी एनएसजी का बहुत बड़ा हाथ था। एनएसजी ने ही वो ऑपरेशन खत्म किया था। कर्नल जोशी उस एनएसजी स्क्वाड का हिस्सा हैं जिन्होंने इस अटैक के दौरान टेररिस्ट को मार गिराया था। जी हाँ, खैर उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने कर्नल जोशी के साथ एक नहीं 2 सुपरहिट पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं। आज के इस पॉडकास्ट का थीम है इंडियन आर्मी और एनएसजी के अराउंड, उनकी ग्रेटनेस, उनकी ट्रेनिंग के अराउंड। आई एम श्योर कि ये मिलिट्री स्पेशल एपिसोड, ये एनएसजी स्पेशल एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड एंजॉय दिस स्पेशल एपिसोड विद स्पेशल फोर्सेस लेजेंड कर्नल तुषार जोशी। Colonel Tushar Joshi, sir, it's our absolute honor to have you on the show today. Ironic Show has already hosted a few of the defense personals from Navy background who have been from Marcos. We have the first female cadet of Indian Army, Major Priya Jhingan, भी show पे आ चुकी हैं. We have hosted couple of other defense personals as well. This is the first time that sir हमारे podcast पे कोई NSG से कोई आए हुए हैं, and it's our absolute honor to have you here, sir. Thank you so much for your time. It is my pleasure to join you. Yeah. ये सर आर्मी ज्वाइन करने का एक सबके कुछ अलग अलग स्टोरीज होती हैं. आई हैव स्पोकन टू with my limited knowledge that I have of speaking to the army people, not army or the defense people in general, सबके सर कहीं पे किन्हीं का है कि they were the third generation or the second generation of defense personnel in their family. Some had this, ये बढ़ते वो जब बड़े हो रहे थे तब उनके अंदर ये यूनिफॉर्म का लव आ गया, ये सर्व करने का देश को एक लव आ गया. तो आपके लिए सर ये कैसे शुरू हुआ? हाउ दिस आर्मी लव स्टार्ट? Let me thank you first for calling me for the podcast. It's our honor. And I really wish that this podcast should help the youngsters, the today generation Z, in their future. So what encouraged me to join army was such. When we were small, when we were in school, so our school, we had my friends. We had 3 friends, we are fast friends, and when we were young, then only we have thought we will be joining army. One will join army, one will join Air Force, and one will join Navy. So that was the plot. So, but the things didn't turn up so accurately, but yes, it did materialize. One of my friends, he joined Air Force. He went through NDA. He was intelligent. Yes, he was intelligent and he got through NDA. We also gave the NDA entrance exam, but other 2, self and one more friend, Ankur, and the one who got selected was now Group Captain Sanjay Petkar. He got through through NDA. Ankur and self, we both couldn't. Then we did our graduation. We passed out from the college, but we didn't leave our aim. We wanted to join army or so one has gone to Air Force,
Then my friend Ankur, both again tried. We got selected in UPSC. Then we got through SSB. He got through. He had opted for Navy, but he couldn't get through Navy because of eyesight or something. But then he joined Army, and I I was left behind. ये दोनों तो ज्वाइन कर गए थे मेरे दोनों फ्रेंड्स. और दूसरा एक, आई जस्ट बिफोर आई गो टू माय सिलेक्शन, आई जस्ट वांटेड टू से कि जब भी हम यूनिफॉर्म वाले को देखते थे, क्योंकि हमारे घर से हम जब भी हम जाते थे, गोलकोंडा एरिया था, आई आई ग्रो अप इन हैदराबाद, वहां से जाते थे तो आर्मी कैंटोनमेंट से गुजरते हुए जाते थे. तो वी यूज्ड टू सी देम इन यूनिफॉर्म, वी यूज्ड टू सैल्यूट देम एंड वी यूज्ड टू फील प्राइड. Then, yeah, that was one aspect. Second aspect, with three of us, we had taken the interview of squadron leader Rakesh Sharma's mother. Oh. Squadron leader Rakesh Sharma, group captain, then squadron leader, but now group captain Rakesh Sharma, who was the first astronaut of India, who was the first man to go in space. So, his mother was a teacher in Kendra Vidyalaya. And we also were in Kendra Vidyalaya. So we had gone to take an interview of hers. Or while giving interview, we were actually so when कि जाना तो फौज में ही जाना है या एयरफोर्स में ही जाना है, because that mind is very kacha mind. You can actually mold it. They are like a small soft clay. You can just mold it in the shape you want. So that was it was that period. So that had a good impression on us. That was one thing. Then, of course, coming to both of my friends, they joined services, one Army and one Air Force. Then logically, I should have gone to Navy, but I couldn't go because I was not a science graduate. So I went for Army. I cleared my UPSC, went for SSB selection. I hope you know SSB. SSB Service Selection Board. Yeah, that's the toughest by interview. So I went for SSB. I flunked that. Came back again after 6 months. I gave UPSC exam. I cleared it. Again went for Service Selection Board. Again I flunked. Came back after 6 months. Again I gave UPSC exam and got through. Went to SSB. That SSB I cleared. So, सर आपके लिए थर्ड टाइम लकी था वो. थर्ड टाइम लकी था या क्या था? But till today, I am retired today from Army, but yet I don't know why I was rejected for first two attempts and why I got selected in third attempt. मेरे को अभी तक उसका कारण पता नहीं. The SSB interview is such which is very subjective in a sense. It's a psychological test, so it becomes subjective. So anyway, so I also, and more than me, तो मेरे दोनों friends, they were happy ये भी आ गया in uniform force. So this is how that motivation, and we had that zid to join forces. Sir, just wanted to know, आपका जो ये IMA का जो आपने IMA join after obviously clearing everything, you joined the IMA. So sir, थोड़ा सा हमें अपने ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं, about your training part, and then how you got commissioned into the Indian Army. Yeah. Now, it was my first step into IMA for the training academy, IMA Dehradun. And as any cadet, I had gone as a civilian there, coming out of straight from college. I had joined very first day. My seniors called me, बुलाया. They gave us all that issue होते, कपड़े वगैरह सब कपड़े issue हुए. And IMA, I will just give you in two parts. One is they teach you how to live in services. And second part, I will talk of training in IMA. Sure. What had happened is, firstly, they break your ego. जो हम लोग कॉलेज में बोलते हैं रैगिंग एंड ऑल, वी डोंट कॉल इट रैगिंग, वी कॉल इट सेशन. Our seniors, they take session. अभी इसमें ये होता है कि तुम भले ही कहीं से भी आए हो, you have to be on the equal platform when we come to academy.
or when you pass out from the academy. That's why when we pass out, we are all same, with same psychology, with same attitude, with same spirit. तो ये सबको सबको सेम करने के चक्कर में राइट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म दे स्टार्ट मोल्डिंग यू. तो नाउ मोल्ड करने का तरीका एकदम अलग. एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ. लाइक वहां पर एज अ फर्स्ट टर्मर यू आर रिक्वायर्ड टू वियर गाउन. एक जो हाउस कोट होता है ऊपर गाउन. यू कैन नॉट गो मूव आउट इन जस्ट शॉर्ट्स और टी शर्ट और kurta pajama or night suit. You cannot move out like this, particularly the junior lot. So they told me to buy all first timers to buy gown. We got orders. I didn't buy. कौन पहनता है गाउन वगैरह? कोई नहीं पहनता. कौन पहनता है? आप पहनते हो? नहीं पहनते. हम कहा, हमने भी बचपन से कभी पहना नहीं. राइट. तो बोला यार, तो मैंने नहीं खरीदा. इट वेंट ऑन. एक 3-4 दिन हो गए. आई जस्ट केम आउट ऑफ माई रूम. एक थर्ड टर्मर था, जो बॉस, सबसे बड़े बॉस होता है थर्ड टर्मर, बिकॉज आफ्टर थर्ड टर्म यू पास आउट एज second lieutenant. That time it was second lieutenant. Now it's lieutenant. तो थर्ड टर्मर्स, एक थर्ड टर्मर ने मेरे को पकड़ लिया. बोला कम हियर, वेयर इज योर गाउन? मैंने बोला आई डिडंट बाय. बोला व्हाई? बोला आई सेड आई डोंट वांट इट. व्हाट द हेल? Don't want it. It's nothing. I don't want it, or you don't want it. You have to buy. When orders are there to buy a gown, you have to buy a gown. So that is what the protocol says. बोला no sir, I don't want. मैं अड़ गया. उसने मेरा, he just held my collar. Oh, he held my collar within max 1 second. My hand was on his cheeks. Bad. तो बोला बॉस ऐसा है. आई जस्ट टोल्ड हिम इन दिस वर्ड्स ओनली कि मैं कॉलेज से निकला हुआ आदमी हूं. डोंट एवर मेरे गिरेबान पे हाथ मत डालना. डोंट कैच माय कॉलर. एंड आई गिव हिम सच अ बिग स्लैप टू हिम एंड ही जस्ट हैड अ शिवर्स. ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्मर तो ऊंची आवाज में बात नहीं करता है थर्ड टर्मर से. इसने तो आगे झापड़ मार दिया पहले चौथे दिन में ही आते आते. अच्छा, I didn't realize what I. उसने मेरा कॉलर पकड़ी और वेरी नेक्स्ट रिएक्शन वाज माय हैंड. ये हो गया. थर्ड टर्मर को मार दिया, को थप्पड़ मारा फर्स्ट टर्मर ने. ये वो हल्ला गुल्ला हो गया. एंड दैट नाइट, उस दिन के बाद से 15-20 दिन तक हमारा सेशन ही चलता रहा. जो आज के हम लोग रैगिंग बोलते हैं. इट्स नॉट रैगिंग, बट हम लोग सेशन बोलते हैं. कंस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन बट धुआं निकाला. और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जितने भी कोर्समेट थे, हमारा वैसा एक ने गलती तो सबको सजा. इट यूज्ड टू बी दैट. तो मैंने किया. अच्छा, आई डिडंट रियलाइज कि ना इतना बड़ा इशू हो सकता है. फिर सबका सेशन दिन रात. हम क्लासेस पे जाते थे, परेड्स पे जाते थे. आते ही ये चालू. फिर हमारा अपना क्या बोलते हैं उसको, रोलिंग एंड बड़ी साइड रोलिंग, क्रीम रोलिंग एंड ऑल दोस, कीचड़ में रोलिंग, ये सब चलता रहा. करते 15-20. जब बाद में धीरे धीरे मेरे कोर्समेट्स को पता लगा कि आई एम द कल्प्रेट जिसके कारण उन सबको हो रहा है, देन दे वर आफ्टर मी. सो एनीवे, इट वाज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. इट इज हाउ यू दे ब्रेक योर ईगो. ये ना, मेरे को ईगो था. मैं ईगो क्या था, मतलब इट वाज जस्ट अ रिएक्शन, बट आई डिडंट रियलाइज भैया ऐसा सब नहीं होता है. So that is how that first lessons which I learned. फिर ऐसे एक वन ऑफ द सेशंस वहां पर होता है, एक मसूरी नाइट. देहरादून से मसूरी की लाइट्स दिखती है. They call it मसूरी नाइट्स. तो उस मसूरी नाइट में क्या होता है, जैसे रात में डिनर करके आए सब लोग. देहरादून इज वेरी कोल्ड प्लेस. नवंबर दिसंबर इट इज चिल. तो आके खाना खाने के बाद आते थे. और ना हमारा क्वाड्रेंगल था ऐसा. चारों तरफ से रूम्स थे, ऐसे कैबिन्स थे हमारे. बीच में क्वाड्रेंगल के अंदर एक बीच में एक सिंटेक्स टैंक रखा था, बड़ा 1000 लीटर. उसके अंदर पानी भरा हुआ. हमको बुलाते थे करके. फिर ना वहां से ठंडा ठंडा पानी सर के ऊपर. ठीक है, ठंडा ठंडा पानी हम सर के ऊपर डालना और मसूरी के लाइट्स गिरना वहां से. इट वाज कॉल्ड मसूरी नाइट्स. इट इज जस्ट टू मेक यू मेंटली टफ. एंड वी यूज्ड टू, मतलब ठंड लगती थी
लेकिन ना वो एक हमने अपने इसमें वो लगा लिया, बना लिया था कि साला इनको दिखाना नहीं है कि हमको ठंड लग रही है या हमको तकलीफ हो रही है ना। हम फिर ना बोला हाँ ऐसे मन ही मन सोचते थे क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, साले कोई ठंड नहीं है वाला, और मजा आ रहा है, और डाल रहे भाई, और डाल और डाल। ऐसे कर करके ना दैट साइकोलॉजिकली हमने अपने आप को ऐसा किया कि सच्ची में थोड़ी देर के बाद ठंड लगनी बंद हो गई। सो मैं ये आई एम जस्ट गिविंग व्हाट लेसन्स लर्नड इज, इट इज एवरीथिंग इज इन माइंड। Right. इट इज दिल में है, माइंड में है। अगर तुम माइंड को स्ट्रांग करो, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग करो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। So these were the lessons. Then coming to the training, we had a training drill tha, PT tha. PT was very rigorous. Drill was very tough. ये सब चलता रहा, करते रहे। और इनिशियली कमिंग फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, आई एम द वेरी फर्स्ट जनरेशन अनलाइक अदर्स, बट आई एम टोटली फर्स्ट जनरेशन पर्सन। आई हैड नो आइडिया अबाउट फौज में क्या होता है क्या नहीं। फौज में क्या होता है पता है हमको, सिर्फ यही पता था जो आप लोगों को पता है। आप लोगों को तो फिर भी अभी नॉलेज बहुत है। Right. हमारे टाइम पे आई एम टॉकिंग ऑफ 89 90 जब हम यंग थे फिर से, तब हमारे को इतना इतना एक्सपोजर नहीं था। पर आई थिंक तो आज के डेट में इंटरनेट की वजह से काफी सारी चीजें लोगों को इंटरनेट एक्सेसिबल हो गई इंफॉर्मेशन। इंटरनेट हो गया, पहले सोशल इतना मीडिया हो गया, इतना कुछ पहले भी इतना एक्सेसिबल नहीं था इंफॉर्मेशन। नहीं था। हम वो जस्ट ऐसी किसी वर्ड ऑफ माउथ से किसने कुछ बता दिया तो बता था, या मूवीज में देख लेते थे, या फिर ऐसी कहीं कैंटोनमेंट में कहीं गए किसी के पास या कहीं ऐसे गए तो देख लिया। तो ऐसे ही, इससे ज्यादा हमारे को इतना एक्सपोजर नहीं था। हम्म। So we just got through this training, अलग अलग ट्रेनिंग। फर्स्ट टर्म I cleared, second term I cleared, then third term. During training we have got sports, games, सब कुछ होता है। It's they develop you holistically, सारे जगह से उन लोग ट्रे करते हैं। मतलब तुम्हारी फिजिकल फिटनेस भी होगा, तुम्हारे एकेडमिक्स भी होंगे, तुम्हारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी होंगे, तुम्हारे क्लब्स भी होंगे जो तुम्हारे इंटरेस्ट के, हॉबी क्लब्स भी होंगे। फिर उसके बाद एक्सकर्शंस और बाहर तुम्हारे ट्रिप्स भी होते हैं। फिर मतलब इस तरह के, फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, कोई टैलेंट होता है, किसी को गाने का टैलेंट, किसी को ड्रामा करने का टैलेंट, एक्टिंग का टैलेंट, ये वो, दैट ऑल्सो इज नर्चर्ड देयर। तो दे ट्रेन यू होलिस्टिकली सब जगह से। हॉर्स राइडिंग होता है, स्विमिंग तो होता ही होता है। So they make you men out of boys. That is how I can say in single line. They actually make you men out of boys. And that's how we pass out. We pass out by keeping our foot on the अंतिम पग on the Chetwood Hall. चेटवुड बिल्डिंग है, उसके वहां पर अंतिम पग लिखा हुआ है फॉर द फाइनल स्टेप। उसके पर हम लोग पैर रखे, फिर देन वी बिकम ऑफिसर्स। तो दिस इज हाउ वी पास आउट फ्रॉम द एकेडमी। तो बिफोर आप इससे पहले थोड़ा आगे बढ़े, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट फीलिंग जब एक वो बच्चा जो अपने 3 दोस्तों के साथ जिसने एक पैक्ट बनाया था कि हम तीनों डिफेंस में जाएंगे, जब आप वो अंतिम पग को क्रॉस किया आपने, तो हाउ वाज वो फीलिंग कैसा? अरे आई थिंक इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन नो, वर्ड्स। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। मैं बता रहा हूँ, इट वाज लाइक आई हैव रीच्ड द मून। अपना चंद्रयान 3 गया है ना, जब वो वहां पे पहुंचेगा और जो हमारे साइंटिस्ट को फील होगा, वो मेरे को फील हो रहा था। एंड आपके पेरेंट्स वगैरह वहां पे थे, कोई आपके हाँ, फैमिली में से? my parents, in fact, then my wife, then my girlfriend, she had also come Oh, wow. she had also come for my passing out parade, and they watched me marching past and then taking the final step, and we were pipped as a second lieutenant. तब सिंगल तारा लगता था, आजकल 2 तारे लगते हैं। as they pass out as lieutenant, we passed out as second lieutenant. तो वो हुआ, that's a great at the age of 22, 23, 20, young officers, gadgeted class 1 gadget officer बोलो उसको, that's a great feeling, immense power, और trained ही निकले होते हैं। तो lot of zeal, lot of enthusiasm to do something for the country, काफी hopes और काफी जोश लेके बाहर निकलते हैं। तो थोड़ा सा आपके ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा और डीप जाते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग जो एज ए लेमैन हमारे को सुनने को मिलती है, देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स दैट यू गो थ्रू। आई मीन, आपको जो कहते हैं ना लिविंग ऑफ द लैंड, I will just आपको come to that.
I will come to that. नेचुरल रिसोर्स से ही सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करके रहना I पड़ता है. will come to that. यस प्लीज Like first term is our basic term. बेसिक ट्रेनिंग होती है जिसमें दे कंडीशन योर बॉडी, फिजिकल फिटनेस करते हैं, तुम्हारी चाल ढाल ठीक करते हैं, तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स ठीक करते हैं. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एकेडमिक्स. एकेडमिक्स अपना हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री, बाकी सिविक, ज्योग्राफी वगैरह जो एकेडमिक्स है, साइंस वगैरह, वो सब चलता रहता है. आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग प्योरली मिलिट्री ट्रेनिंग. तो फर्स्ट टर्म में हमारा ये होता है फिजिकल फिटनेस, फिजिकल कंडीशनिंग, ये सब होता है. देन यू हैव गॉट बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स, वो सिखाया जाता है कि ना छोटे छोटे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर सेकेंड ईयर में कुछ कॉमन हट जाते हैं, फिर स्पेशलाइजेशन आ जाता है, थर्ड फोर्थ इज प्योर स्पेशलाइजेशन. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. तो फर्स्ट टर्म में इट्स ऑल कॉमन, सब लोग होता है, सब कुछ सीखते हैं, सबको थोड़ा थोड़ा सा. देन वी as we graduate to the second term, then okay, now we have got the speed marches, different speed marches. At the end of the term we have got a speed march. We go to the camps. First term में I'll just finish off with the first term of my thing. So वहाँ पे camps करते हैं. तो how to pitch the tent, how to make the camp layout, उसमें स्नेक ट्रेंच कैसी बनाई जाती है, स्नेक पिट कैसा बनाया जाता है, वो मिट्टी से कैसा उसको सॉफ्ट बिल्कुल उसकी लिपाई वगैरह करके कैसे किया जाता है, व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी देयर. एक टॉनिके होता है, फिर मटका रखा होता है पानी का, मतलब प्रॉपर कैंप लेआउट वगैरह वैसा सिखाया जाता है. उसको एक्सरसाइज अभ्यास बोलते हैं, कहीं है ना, कहीं एक्सरसाइज ग्रीन हॉर्न बोलते हैं. तो इस तरह के एक्सरसाइजेस होते हैं. वो ग्रीन हॉर्न मतलब जो नए नए सीख रहे हो टाइप्स. तो इस तरह की एक्सरसाइज होती है. यू लर्न. देन यू एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज यू हैव गॉट द स्पीड, मतलब रन बैक होता है. जहां पर कैंप करने गए हो वहां से रन बैक होता है 10-15. फर्स्ट टर्म में थोड़ा क्लोज पास में लेके जाते हैं, तो वहां से 10-15-20 किलोमीटर पिट्ठू के साथ दौड़ते हुए आना होता है. एंड वी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपनीज इन IMA. सो इंटर कंपनी कंपटीशन होता है कौन पर, एंड इट्स क्वाइट अ प्रेस्टीज इशू कि कौन जीतेगा. तो हमने हमारी कंपनी को जिताना है. एंड उसमें ऐसा होता है कि एवरीवन शुड कम टुगेदर. तो इस तरह का एक फर्स्ट टर्म ये होता है. फर्स्ट टर्म से व्हेन वी कम टू सेकंड टर्म वी आर बिट सीनियर. हमारे भी जूनियर्स आ गए होते हैं एज अ फर्स्ट टर्मर्स, फ्रेशर्स आए होते हैं, उनको भी हमको सिखाना होता है. लाइक आवर सेकंड टर्मर्स टॉट अस व्हेन वी वर इन फर्स्ट टर्म. हमको हमारी वो जिम्मेदारी हमारी होती, एनी फर्स्ट टर्मर डूइंग मिस्टेक सेकंड टर्मर को पनिशमेंट मिलती थी. तो इट इज टू बिल्ड द कॉमरेडरी, टू बिल्ड द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टू बिल्ड द एस्पिरिट डिको. तो ये जो होता है ये वहां से इन ऐसे इस तरह के एक्टिविटी से या ट्रेनिंग से ये इनकलकेट होती है. Now when we came to second term, then we had a different set of training. We had a थोड़ा tougher हुआ. We learnt on the higher organization of army. सेक्शन प्लाटून का पढ़ा, अभी कंपनी लेवल और इस तरह का, फिर बटालियन लेवल पे सीखने लगे हम. तो इस तरह के कौन जो वेपन, साथ साथ फायरिंग भी हमारी ट्रेनिंग चलती थी, और पीटी ड्रिल वगैरह तो चलता ही रहता था. बट देन हमारी और टफनिंग हो गई होती है तब तक फर्स्ट टर्म के बाद तुम्हारी बॉडी और बिल्कुल टफन हो गई होती है. सेकंड टर्म में यू हैव गॉट अ देन क्रॉस फर्स्ट टर्म में ही क्रॉस कंट्री वगैरह शुरू हो जाती है हमारी, क्रॉस कंट्री रन 14-15 किलोमीटर्स की. फिर सेकंड टर्म में भी दैट एवरीथिंग कंटिन्यूज बट ओनली थिंग इज उसका लेवल बढ़ जाता है ट्रेनिंग का. तो फिर देन अभी इसमें फिर हमारे को वॉरफेयर, अलग अलग वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, लैंड वॉरफेयर, इसके बारे में थोड़ा सिखाया जाता है. ठीक है, फिर उसमें फिर एक अगेन लास्ट में फिर वी गो फॉर कैंप वगैरह के जाते हैं. फिर देन वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स का स्पीड मार्च होता है. पॉइंट में मैप रीडिंग सिखाई जाती है. मैप रीडिंग में हाउ टू रीड मैप, हाउ टू रीड मैप टू ग्राउंड टू मैप, ये कैसे पढ़ना है. हाउ टू आइडेंटिफाई जो ग्राउंड पे जो दिख रहा है वो मैप पे कहाँ है, राइट. जो टोपो मैप होता है, जो मैप के ऊपर जो कुछ कन्वेंशनल साइंस है, वो तुमको ग्राउंड पे क्या दिख रहा है, मंदिर, रिजर्वेटरी, फलाना ढिमकाना, मस्जिद, जो कुछ आपको मैप पे दिख रहा है, इज इट देयर ऑन द ग्राउंड.
पहले वो भी देखते हैं। तो दीज आर द एक्टिविटी, इस तरह का हमको सिखाया जाता है। फिर यूजिंग द मैप रीडिंग वी हैव गॉट पॉइंट टू पॉइंट स्पीड मार्च होता है। दे गिव अस पॉइंट्स, या इन सबको क्रॉस करना है आपने, एंड वहां पर वो आता है। तो इस तरह से अगेन वो इंटर कंपनी कॉम्पिटिशन होता है, तो 80-90 किलोमीटर का होता है। सो इट इज ऑन द हिल्स ऑफ देहरादून माउंटेन, पहाड़ वहाड़ में हिमालय से वो चढ़ते जाओ। देर आर सो मेनी फॉल्स क्रेस्ट, ऐसा लगता है अरे ये वो दिख रहा है। हम ऊपर चढ़ने जाता है तो वो पहाड़, मतलब वो फॉल्स क्रेस्ट होता है, उसके बाद फिर नीचे जाना होता है, फिर कीप क्लाइंबिंग अप, एक और फॉल्स क्रेस्ट, फिर मतलब दैट इंक्रीजेस योर एंडोरेंस, मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है कि अलग करना है बस। वहां पे एक दूसरे का, और वी हैव गॉट स्टोर्स विद अस, ये स्टोर्स को लेके जाना होता है, कोई स्टोर्स पीछे छोड़ना नहीं है, घुमाना नहीं है कुछ। तो अगर स्टोर्स किसी क्या का है, थोड़ा सा स्टोर्स बताओ। मतलब हमारे पास रेडियो सेट होगा बड़ा, ओके। पीछे हमारा हमारा खुद का किट होगा, ब्लैंकेट, एक ड्रेस होगा, हमारा हैवरसैक बैग होता है पूरा, वो होगा, वेपन्स होंगे बड़े बड़े, ओके। एलएमजीज होंगी, राइफल्स होंगे, एम्यूनिशन बॉक्सेस होंगे, जो डमी होते हैं, मतलब खाली बॉक्सेस होते हैं, पर उठाना तो है ही, और राइट। अकाउंटेड होता है। जहाँ स्टार्ट पॉइंट से जो करते हैं हमारे लिखवा देते हैं, ये एंड लास्ट पॉइंट में भी हमको दिखाना होता है कि यस सी ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मतलब इतना सब सामान भी उठाना है, एंड वो पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे सेक्शन में, एक पूरे कंपनी में ऐसे डिवाइड होता है। अगेन उसमें ये सीखते हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड। कोई कोई किसी की फिजिकल कैपेबिलिटी अच्छी होती है, स्ट्रांग होता है, तो ही टेक्स हैवी लोड। कोई जो थोड़ा सा फ्रेजाइल टाइप बंदा होगा, उसको भैया तू अपना हथियार और पिट्ठू ही संभाल ले, वही बहुत है। तो इस तरह से एक दूसरे को संभालते संभालते कोई कोई तो इंज्योर भी हो जाते हैं, और इंज्योर्ड पर्सन को उठा के भी लाना है, क्योंकि इतने इतने 80-90 किलोमीटर में पहाड़ में ऊपर नीचे खड्ड में जा रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। ये सब करने में किसी का पैर में मोच आ जाती है, किसी को तकलीफ होती है, कुछ तो कोई हो ही जाता है इंसिडेंट। तो वो बंदे को भी उठा के लाना है। ऐसा नहीं है कि वहां गया, वहां पे बोल दिया और रेडियो सेट पे बुला लिया, यहाँ से कोई लेके जा रहा, नो, यू हैव टू कैरी हिम अनलेस इज इट्स वेरी सीरियस और समथिंग। तो ऐसे कोई नो, यू विल बी कैरिड। फर्स्ट एड भी एडमिनिस्टर करना है उसको, एंड देन यू हैव टू कैरी हिम थ्रू आउट योर स्पीड मार्च एंड गेट हिम बैक। तो ये सब करना होता है। तो इसपे ना तुम्हारी टीम स्पिरिट बढ़ती है, एक दूसरे के लिए ना गालियां भी देते हैं, एक दूसरे को डांटते भी है, बोला फिर जोश भी दिलाता है, चल चल चल, कुछ नहीं हुआ, चल 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 करके उसको जोश भी देते हैं। और मतलब इस तरह से उसको गाली भी देंगे, मारेंगे भी, सब कुछ करेंगे, चला मर गएगा दिस थिंग दैट थिंग, मतलब ऑल जितनी गालियां दे सकते हैं सारी दी जाती है वहां पर। बट इट इज ऑल फॉर द दिस थिंग, इट इज नॉट मेंट, इट इज जस्ट टू गेट और जोश, फिर लास्ट में फिर लेसे लास्ट में होता है, देन दिस हाउ वी एंड अप विद दिस थिंग। तो ये हो गया। तो इस तरह से सेकंड टर्म हम लोग क्लियर करते हैं। एकेडमिक्स आर गोइंग ऑन इधर टू फोर, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। फिर देन वी ग्रेजुएट टू द थर्ड टर्म, नाउ वी आर द बॉसेस, अब सबसे सीनियर है। अगेन वी हैव टू सी दैट सेकंड टर्मर्स आर डूइंग देयर ड्यूटी ऑफ टीचिंग फर्स्ट टर्मर्स। तो इस तरह का हो जाता है। देन वी हैव गॉट वेरियस अपॉइंटमेंट्स, बटालियन कैडेट, एडजुटेंट, फिर बटालियन अंडर ऑफिसर, मतलब ये सारे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फर्स्ट सेकंड टर्म दे गेट दोज अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स मिलती है, एंड देयर अपॉइंटमेंट्स हैव गॉट देयर ओन ड्यूटीज टू गिव कमांड करना अपने नीचे के कैडेट्स, भले ही उनके कोर्समेट है, बट साथ साथ ही जस्ट टू गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर रोटेशन में होते हैं, अभी एक महीना तू बीओ, अगली बार वो बटालियन ड्रॉप, अगले बार अगले महीने वो होगा। तो एवरीवन गेट चांस टू बिकम बीओ बीसीए, मतलब एवरीवन तो नहीं, लेकिन ऑल दोस गुड प्रोफाइल वाले टॉप रैंकर्स और जो। तो इस तरह से थर्ड टर्म में, फिर देन थर्ड टर्म में यू कम टू आर्मी बेस, बिल्कुल बेसिक में आते हैं। लाइक टू मेंशन ऑल which I like most is jungle warfare. I love jungles. I love jungles like anything. In fact, I can live in jungle, and I will love to live in jungle. And as you just said, living off the land, uh, that is my forte. I can just live off the land. मेरे को
कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ज्यादा मतलब ज्यादा दिन नहीं, बट यस आई कैन स्टे फॉर, आई कैन लिव ऑफ द लैंड। सो इसमें फिर हमको ये सिखाते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी ईटन, what all things should not be eaten, which are dangerous plants, which are dangerous animals, which are dangerous this thing, which all animals can be eaten, how animals can be eaten, how can they can be slaughtered, किस तरह से मार सकते हैं, ये सब जंगल वॉरफेयर में है। There will be surprise, snakes भी खाते हैं, राइट। you eat snakes also। तो In कोई fact, ऐसा एनकाउंटर रहा हो आपका हाँ सांपों के साथ? एनकाउंटर तो बहुत, हाँ एनकाउंटर रहा पे। It was when I passed out. I got commissioned into 21 Kumaon Regiment, so I was posted there. So young ही था, I was तब तक मैं कैप्टन, young कैप्टन था। तो I knew that I can catch snake easily. So अच्छा नहीं, इससे पहले एक और बताऊं, मैं कमांडो कोर्स के लिए गया था। ओके, I had gone to a commando course। तो कमांडो कोर्स में दे टीच यू, ये तो मैं अपने एकेडमी की बात कर रहा था अभी तक, आईएमए की। तो फिर आईएमए में भी किसने बताया कि ऐसे पकड़ो सांप, ऐसे पकड़ो, मैंने सीख लिया। बट वहां पे सांप पकड़ने में जा रहा था, पर समथिंग हैपेंड, आई डिडंट गेट चांस टू कैच द स्नेक, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको करने की इच्छा होती है ऐसे लकड़ी पकड़ के, वाई स्टिक से ऐसे दबा के फिर ऐसे पकड़ने की, कोई हिम्मत करता है, कोई नहीं करता है। फिर हाउ टू कुक, सांप को जैसे खाना होता है तो छेंच पीछे से, छेंच आगे से कट करके उसको स्लिट करके, एंड दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज इफ यू आर स्टक इन जंगल, कुछ है तो खाने के लिए जिंदा तो रहना है, तो यू हैव टू ईट, जो है जैसा है किस तरह का, तो सांप सूप मिलते हैं खाना है, जानवर मिलते हैं जो भी है, खरगोश फिरगोश मिलता है खाओ, बर्ड्स खाना है खाओ। तो ऑल दीज थिंग्स ना, एंड हाउ टू जलाना कैसे है, क्या करना है, खाना, यू विल सरप्राइज। जैसे चावल बनाना है, पतीला नहीं है तो बैम्बू को काट के, बैम्बू को स्लिट करके अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर चावल और पानी डाल के उसको सील करके, कच्ची वो चिकनी मट्टी लगा के उसको लपेट के उसको आग में डाल के भी पकाया जाता है। यू कैन कुक राइस ऑल्सो देयर, यू कैन कुक एग्स देयर, वैसे ही वो बैम्बू के अंदर। फिर पानी, हाउ टू गेट वाटर, हमारे पास जो पानी देते हैं वो एक वाटर बॉटल होता है, और एक सेक्शन में एक बड़ा जेरिकन देते हैं, वो खत्म हो गया तो जंगल से ही तुमको पानी लेना होता है। तो कई फ्लोइंग वाटर है उसमें से पानी भरना पड़ता है। देन वाटर स्टरलाइजेशन किट होता है हमारे पास, तो उसमें डाल के उसको इस तरह से हमको सिखाया जाता है कि पानी को कैसे साफ करना है एंड ऑल दैट ना। तो कौन सा पानी पीना, और बेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यू विल फाइंड इन बैम्बू। अगेन बैम्बू इज अ वंडरफुल ग्रास, इट्स अ ग्रास, बैम्बू इज अ ग्रास। तो बैम्बू इज अ वंडरफुल ग्रास, जिसमें तुमको पानी भी बना सकते हो, खाना भी बना सकते हो। और जब बारिश वारिश आती है ना, तो पूरा जो बैम्बू में पानी सीप इन होता है, उसके नॉट्स में से पानी सीप इन होता है और अंदर पानी भरा रहता है, एंड इट इज फ्रेश वाटर। You can get water from the bamboos also. So these are the things which actually is taught us in IMA। ये छोटा थोड़ा थोड़ा ऐसा हमको सिखाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टाइम होता नहीं है, शॉर्ट में सब कुछ सिखाया जाता है। बट देन यू लर्न इट इन योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब व्हेन यू आर जॉइन आर्मी, जब अपने एक्चुअल में, जब यू आर इन ऑपरेशन, एक्चुअल में व्हेन यू आर इन जंगल, एक्चुअल में व्हेन यू आर इन डेजर्ट, एक्चुअल में व्हेन यू आर इन हाई एल्टीट्यूड, देयर यू ऑल दिस ट्रेनिंग कम्स इनटू प्ले। सो वहां पर ये सब यूटिलाइज होता है। तो मैं यूनिट में क्या हुआ, हमारे मेस में सांप घुस गया, तो वहां से चलाया सांप, सांप तो है ना वो, मैं मेस में रहता था, आई वाज अ बैचलर देन। मेरे को बोला कि सांप आया है, तो दे डिडंट न्यू दैट आई कैन कैच स्नेक। तो उन्होंने बोला सर सांप आया है, बोला चल चल देखते हैं। चलो मैं आई वेंट अप टू द मेस में गया, और बाकी के लोग ऑफिसर्स भी आ गए। वो शू 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 चारों जगह से शू 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 चल रहा है, वो बॉक्स के पीछे और दीवार के बीच में फंसा हुआ था, बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, फालतू शू शू कर रहा है। उसको भगाने के चक्कर में जो बाहर आएंगे, कुछ नहीं, मैंने एक ग्लास था, लंबा ऐसा वो ग्लास था, वो धीरे से गया उसके मुंह के ऊपर हल्के से रखा, मतलब इतना सा लगा कि सो दैट ही शुड नॉट टेक आउट हिज हेड। तो उसने ऐसा दबाया उसका,
और नीचे से हाथ पकड़ा, उसके गर्दन के वहां पे ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लिया. Oh my! So this was my first encounter, and it was quite a six, 5.5 footer snake था वो. And इनफैक्ट मेरे एक सीओ थे तब, मेरे जो सीओ थे करुण बाजवा करके थे, तो वो थे, तो वो ही ऑल्सो ही न्यू लॉट अबाउट स्नेक्स एंड ऑल. तो मैं ऐसे ही पकड़ के ले आया, आई कैन नॉट लीव हिम, क्योंकि छोड़ूंगा तो काटेगा, तो ऐसे ही पकड़ के उसको ऐसे लेके गया मैं सीओ के पास. देन दैट इज वेयर ही टॉट मी कि सांप को कैसे देखा जाता है, कि वेदर इट्स अ पॉइजनस और नॉट पॉइजनस. उन्होंने बताया, अगर हेड हेड इज ट्रायंगुलर देन इट इज पॉइजनस स्नेक. इफ उसके आई के pupils, if they are elliptical or triangle, तो oval or elliptical, तो then they are poisonous. If head is as a rectangle, then it is a poisonous. तो नीचे के जो scales होते हैं, if there is a single scale पूरा, just single cell from head to toe, then it's a poisonous snake. और कोई कोई snakes में ऐसे ना 2 rows होते हैं, ऐसे 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 स्केल्स होते हैं, बीच में लाइन होती है, 2 रोज होते हैं. दे आर नॉन पॉइजनस स्नेक. नॉन पॉइजनस स्नेक का हेड गोल होता है, एंड दे हैव गॉट देयर प्यूपिल्स आर राउंड, सो दे आर सोबर स्नेक्स. तो दिस इज हाउ वी लर्न विथ आवर सीनियर्स दिस थिंग. तो लर्निंग इज नेवर स्टॉप, चलता रहता है. द बेसिक ट्रेनिंग आई में होती है, एंड देन यू एक्चुअली लर्न व्हाइल यू आर इन सर्विस. सर कोई ये तो स्नेक्स के बारे में हो गया. जंगल में आप जब रहते हैं, देयर आर लेपर्ड्स, शेर वेर का. ऑब्वियसली शेर हमेशा आपके सामने नहीं आता, वो आदमी से खुद ही दूर भागता है. देख यार, एक्सीडेंटली कभी सामने आ जाते हैं, या फिर कोई और बेयर्स वगैरह, कुछ ऐसा आपके साथ कोई एनकाउंटर हुआ है? हाँ, बियर के साथ एनकाउंटर हुआ है. एक एम्बुश में बैठे थे, वी वर वेटिंग फॉर द मतलब मिलिटेंट्स टू कम. हमने एम्बुश लगाया था, और मिलिटेंट तो आया नहीं, भालू आ गया. एक्चुअली वो खड़ा हो जाता है, तो इट लुक्स लाइक ए मैन ओनली, ह्यूमन ओनली. वो भी खास करके इन द नाइट, थोड़ा सा एम्बिएंट लाइट में ऐसा कोई, ऐसा रात में भी ऐसा कोई खड़ा दिखता है तो थक जाता है. एटलीस्ट वो फिगर से तो लगता है आदमी है. तो वहां पर किसी आदमी का हमारे अलावा और किसी के रहने का कोई काम नहीं है. इफ समबडी इज कमिंग, ही हैज टू बी अ इन्फिल्ट्रेटर. तो हमने फायर कर दिया, करके आवाज आई, एंड फेल डाउन. वी But yet we didn't go there then and there. तभी नहीं गए हम लोग. But yes, in the morning when we saw, so there was a big, huge bear lying dead there. तो ऐसे encounter हुआ. और as far as animals are concerned, yes, you see, if you, I will tell about the jungle only. Jungle na is your friend actually. I am just telling you, it's a friend. You should know how to take advantage of jungle. Jungle will always be eager to help you. Only thing, you should have that eye, you should have that perception, you should have that knowledge to take, extract or exploit for your this thing, and they are always there to help you. ठीक है. As far as these wild animals are concerned, yeah, except human, no animal is wild. कोई जंगली नहीं है, इंसान ही जंगली है, या वही खतरनाक है. वन हु किल्स फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटो, या उसके लिए फॉर देयर ओन प्लेजर, और फॉर द प्लेजर, और प्लेजर फॉर हिज ईगो, और फॉर हिज दिस थिंग, सेल्फिश रिक्वायरमेंट. पर कोई जानवर ऐसा नहीं है. जानवर अनटिल अनलेस वो भूखा है और उसका वो फूड है, और इंसान किसी भी जानवर का फूड नहीं है. राइट. एक्चुअली देखो तो जो हम बोलते हैं ना, टाइगर्स को डरते, टाइगर्स आके आदमी को खा जाता है, ये ऐसे नहीं खाता वो. He eats only when he has got the taste of blood, or if he is injured. क्योंकि ह्यूमन इज द वन जिसको इजीली प्रे होता है. इट इजीली. तो कभी शेर वगैरह होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, या फिर उनके मुंह में ऑलरेडी खून लग चुका है होता है इंसान का, या फिर दे आर इंजर्ड. क्योंकि बाकी के एनिमल्स को पकड़ना उसके बस की बात नहीं होती है. तो इंसान अगर सामने आ जाए तो उसको जीना है, जिंदा रहना है, तो वो मारेगा, तभी होता है. अदरवाइज ऑल एनिमल्स आर शाय
इवन टाइगर, अगर अगर टाइगर आमने सामने आ जाए, अगर एकदम ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा हो कभी आ जाए, जस्ट यू हैव टू जस्ट कीप, वो कुछ नहीं करता है, यू विल जस्ट गो ऑफ अनलेस वो भूखा है और समथिंग, यू हैव टू प्रे दैट इज नॉट भूखा, बट दैट इज ऑल, है ना। और जो लेपर्ड है, लेपर्ड तो बहुत ही शाय है, वो तो आएगा भी नहीं आसपास, जस्ट रन अवे, है ना। सांप ये जो है, ये भी क्या है, सांप तभी काटता है जब उसके पैर, उसके कहीं पैर रख देते हो, वो भी इनएडवर्टेंटली, अगर हम जंगल में चल रहे हो पैर रखते हैं तो वो हो जाता है, बट देन यू शुड नो हाउ टू ट्रीट योरसेल्फ। तो आपको कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कहीं हाँ सांप हाँ, ने काटा है? उंगली में काटा है, नागर इसमें, कश्मीर में, बड़ा में था मैं तब, काटा था, एम्बुश में काटा था, कुछ नहीं सर, काटा, फिर हमने क्या करा, यहाँ बांध दिया, टॉनिक के बांधा, वो फूल गया, उसको कट कर दिया, खून निकाल दिया, खून निकाल दिया ऐसा दबा के करके, फिर बैंडेज वेंडेज बांधा। सबसे पहले जब ये सांप काटता है ना, यू शुड मेक इट, यू शुड नॉट मूव दैट पार्ट, कभी मूव नहीं करना है। और बंदे को भी अगर काटा है ना, तो वहीं पर उसको लिटाओ, उसके हाथ पैर हिलाना नहीं है, नहीं तो क्या होता है, हाथ पैर हिलने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन में तो वेनम स्प्रेड्स ऑल ओवर द दिस थिंग, और हार्ट में जाता है, देन मैन डाइज। वेनम ऐसे नहीं, वेनम कैसे होता है, वेनम ब्लड स्ट्रीम से जब इट गोज इनटू हार्ट और टू ब्रेन, तभी मैन डाइज, नहीं तो ऐसे यहाँ काटने से या पैर में काटने से थोड़ी एकदम मर जाते, नहीं मरता ऐसे, इट्स ए मिथ के ना काटते ही मर गया, ऐसा नहीं होता है, वो इट टेक्स टाइम, इट हैज गॉट इट्स ओन टाइम टू, और इसलिए जब सांप काटता है, उसको आराम से उसको उसको इमोबिलाइज करना है, शांत रहना है, तो उसका टॉनिक टॉनिक के बांधो, उसको टाइट बांधो, ट्राई टू कट इट, उसको मतलब दैट ब्लड ऊपर नहीं आने देना फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। फिर तब तक तो ऑब्वियसली तुमको मेडिकल असिस्टेंस बुलाना ही पड़ता है। तो मेरा भी ऐसे जब काटा था आई डिड माय, इसको मैंने वो कर दिया था, टाइट बांध दिया था, और बिल्कुल ऐसे ही गया मैं, जाके करा के मैंने कट करके मैंने खून निकाल दिया था वैसे, सो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो यू शुड नो इमीडिएट, राइट, ऐसा नहीं कि हाँ सांप काट दिया, सांप काट दिया, सांप काट दिया, यू स्टार्ट शेकिंग एट, बट इट विल गो इनटू द बॉडी। राइट सर। कॉमन लोगों के साथ वही होता है, बिकॉज वी डोंट नो द नुआंसेस, जो एबीसी जो आप लोग जानते हैं एज ए मिलिट्री पर्सनल, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हमें वो चीजें नहीं पता होती, तो हम पैनिक कर जाते हैं बहुत जल्दी। पैनिक में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हाँ, बीपी बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें फिर फैलता है, राइट, इसलिए जैसा काटा ना, सांप काटा, अच्छा का, देन सी द स्नेक, अगर इफ यू कैन सी द स्नेक, वेल एंड गुड, इसलिए एटलीस्ट उससे पता लग जाता है कि जहरीला है या नॉन पॉइजनस है ना। अगर अभी मैंने बताया आपको पॉइजनस स्नेक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वैसे देखो पॉइजनस है तो देन यू हैव टू डू इट फास्ट, सब एक्शन हैज टू बी टेकन फास्ट, नॉन पॉइजनस है तब भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बट इतना फेटल नहीं होता है। वो बस कॉशन के लिए कि बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्शन, जो भी उसका इन्फेक्शन, वो दैट शुड नॉट गो इनटू द। राइट सर। अभी हमने जंगली जानवर की बात की, हम एक और जानवर के बारे में बात करेंगे, द लार्जर जानवर विच विल। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता था, फ्रॉम आर्मी फिर जब एनएसजी जाते हैं, सो एनएसजी भी हर किसी को अपॉइंट नहीं करती, इज अ सिलेक्टेड फ्यू हु आर यू नो इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनएसजी। तो वो सर आपके लिए कैसे हुआ, हाउ एनएसजी लाइफ Now, हैपेंड? I got my commanding officer, he recommended me, like he thought that I will be fitting into that block. तो बिफोर यू And, मूव हेड, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एनएसजी में जाना क्या किसी आपके सीईओ के रिकमेंडेशन पे ही होता है, और देयर इज एनी अदर वे देखो टू गेट इनटू एनएसजी? तो अभी कैसा है पता नहीं, ड्यूरिंग माय टाइम में बताता हूँ, अभी भी तकरीबन वैसे ही है। Okay. देखो, टू गो टू एनएसजी और टू गो टू स्पेशल फोर्सेस और टू गो टू एनी कमांडो यूनिट और जो भी है, यू शुड हैव दैट एटीट्यूड। Right. एवरी पर्सन, मैं कमांडो जा रहा हूँ, आई वांट टू ज्वाइन कमांडोज, आई वांट टू ज्वाइन स्पेशल फोर्स, नहीं होता। यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड, दिमाग वही वाला, दैट्स, मैं कई जगह मैं ये बोल चुका हूँ, कमांडो इज एन एटीट्यूड, इट इज जस्ट नॉट योर बिल्ड, ठीक है। मैं कभी सलाह ऐसा कोई पहलवान विलवान कभी नहीं रहा,
but I was हम्म, पहलवान from here. ठीक है, तो कमांडो इज एन एटीट्यूड, ये पक्की बात. सो ऐसे ऐसे एटीट्यूड वाला बंदा हु इज फिजिकली फिट ऑल्सो, मेंटली रोबस्ट, तो ये कौन जानेगा अपार्ट फ्रॉम यू? वन हु इज असेसिंग यू. right. हु जनरली असेसेस यू? जो तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर हु हैव बीन वाचिंग यू, सीइंग यू थ्रू. जब काम वो हमको टास्क देते थे थ्रू द चैनल, हमको टास्क मिलता था, हाउ वी परफॉर्म, how was our perseverance, how was our endurance, how did we perform, कैसा था कि नेवर डाई टाइप एटीट्यूड, साला काम खत्म करके ही आना है. तो दिस आर फंक्शनिंग, our performance, our functioning, our way of doing the things gives idea to our bosses or one who is assessing us कि यार ये बंदे में है भैया, he has got material and he is that commando material or NSG material or SF material or something like that. We are talking of NSG commandos and special force इसलिए बता रहा हूँ. सेम थिंग गोज फॉर कुछ कुछ लोगों के पास इंस्ट्रक्शनल कैपेबिलिटीज होती है, जो खड़े होके बात करना चाहेंगे, वो अलग अलग एग्जांपल्स देके समझाते हैं, अलग अलग इसमें, है ना. दे रिफर डिफरेंट बुक्स और ये समझाते हैं, द वे दे स्टैंड, द वे दे स्पीक, कैसे समझाते हैं, द वे देयर स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू हिम. तो जो एसेस करने वाले बोलेगा यार ये इंस्ट्रक्टर मटेरियल है ना, ये बंदा कैन गिव गुड इंस्ट्रक्शंस, अच्छी तरह पढ़ा सकता है. तो उसको कई एकेडमीज वगैरह के लिए भी रिफर. बेसिकली ये तुम्हारे जो हमारे जो अप्रेजल्स होते हैं साल के, तो उसमें भी लिख के जाता है. तो ऑब्वियसली हायर अप आर्मी हेडक्वार्टर में या दूसरे हेडक्वार्टर्स में दे कीप सेइंग हाँ अभी कहीं पोस्टिंग आ रही है तो हाँ दे कम अप सीनियरिटी में आ जाता है. हाँ इसको रिकमेंड किया है, इसने कोर्सेस में भी, हमारे कोर्सेस में भी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग वगैरह मिलती है, उधर भी वो करते हैं ना, तो इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिलती है. बोला हाँ इसको कोर्स में भी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली है और इसके सीओ ने भी रिकमेंड किया है, चलो ओके पोस्ट हिम टू IMA, ओके पोस्ट हिम टू NDA और पोस्ट हिम टू यंग ऑफिसर्स कोर्स, वायो कोर्स के लिए. और इस तरह से वैसे ही मेरा ऐसे हुआ था NSG में. बाय माय CO he thought that I'm good for NSG and that mentally I am strong, physically I am good, everything is this thing. He has got all the qualities which NSG guy should have. तो NSG thing तो उन्होंने ऐसे किया and I got through and we completed our probation, 3 महीने का probation. That is one of the toughest probation in India और एशिया है. अगेन 3 महीना 12 वीक्स का, और उसमें भी कहीं बीच में कहीं कुछ हो जाता है, फेल हो जाता है, यू कम बैक टू द यूनिट. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, क्या होता है जब आप NSG के ट्रेनिंग में, NSG के लाइफ में या वेपनरी सिस्टम में, एंड कंपेयरिंग टू जब आप अपनी यूनिट में होते हैं आर्मी में, तो वो क्या डिफरेंसेस कुछ होते हैं? आर्मी इज ए कन्वेंशनल फोर्स. लड़ाई आपको उसकी एक तरह की सिखलाई है, ठीक है. आर्मी इज टू फाइट द एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से दुश्मन से लड़ने के लिए. NSG इज फॉर द इंटरनल थिंग, अंदर कहीं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, अंदर कहीं हॉस्टेज क्राइसिस हो रहा है, तो अंदर कहीं ऐसे कुछ ट्रेन हाईजैक हो रहा है, कहीं कहीं ऐसे हॉस्टेज क्राइसिस हो रहा है, तो उसको कैसे मिटिगेट करना, उसके लिए NSG में होता है. एंड टू डू सो NSG के लिए हमको क्या चाहिए होता है, फिर ऐसे टास्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, टास्क करने के लिए उस टाइप के वेपन्स चाहिए होते हैं. तो यहाँ पर रैकलर एंड कोच के वेपन्स है, MP5, Glock 17, PSG वेपन्स. तो इस तरह के अलग अलग वेपन्स है विच आर सुटेबल टू fight in built-up area, to fight in against militant in the hinterland, in the town, in the country, inland. तो वैसे वेपन्स होते हैं, वैसे इक्विपमेंट होते हैं, एंड ट्रेनिंग भी उस हिसाब से ही होती है. सर आपने अक्रॉस द कंट्री कई सारे टफ टेरेन्स में आपने सर्व किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम JNK, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अक्रॉस द कंट्री आपने सर्व किया. सो एज पर यू,
आपके हिसाब से सबसे ज्यादा टफ टेरेन कौन सा रहा, या फिर सबसे ज्यादा टफ एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा? टफ, देखो, टफनेस इज ऑल रिलेटिव. अगेन, high altitude you can say tough because you're fighting the weather. Right. You have got very worse and worst weather if time comes. Blizzards होते हैं, avalanches होते हैं, है ना. एक तो वैसे ही ऑक्सीजन कम होता है, सो उस तरह से वो टफ है. बट देन यू हैव गॉट, क्या कहते हैं, आजकल तो वहां पे रोड्स वगैरह भी काफी हद तक पहुंच गई है, तो वो एक हो गया. Every this thing has got some limited, some tough, because of some it is tough, because some factors that you feel it tough. जैसे deserts में पानी नहीं है, scarcity. ठीक है. अभी माउंटेन्स में, हाई एल्टीट्यूड में देर जंगल्स ऑल्सो, थोड़ा जहां पे ट्री लाइन है, ट्री लाइन तक जंगल्स भी है. देर यू गेट कवर ऑल्सो, यू गेट रिक्वायर कवर ना. यू कैंट एक्सपोज योर सेल्फ एट द बॉर्डर्स, तो कवर भी मिलता है. यू कैन मेंटेन सरप्राइज देयर. डेजर्ट में तो इट इज ओपन, खुला रहता है. इट इज रियली डिफिकल्ट टू कैमोफ्लेज योर सेल्फ इन डेजर्ट्स. और पानी का प्रॉब्लम है. बट एक्सट्रीम वेदर इतना नहीं होता है. जैसे गर्मी बहुत होती है, पर उस पर कुछ कर सकते हैं. सैंडस्टॉर्म आता है, पर एकदम ऐसा नहीं हो जाता कि मतलब वो अवलांच आ गया और तुम दब के मर गए, या लैंडस्लाइड हो गया, या ऐसा कुछ हो गया. तो इफ यू सी कंपेयरिंग, नॉर्थ ईस्ट में जंगल्स है, तो फॉर मी इट वाज नॉट अ टफ, मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय देयर. बट यस, इन सब में मेरे को हाई एल्टीट्यूड, फॉर मी, एज पर मी, हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा सा होता है. बट यस, पहाड़ों में भी क्या है, देन पहाड़ों में टफनेस इसलिए क्योंकि देर आर, व्हेन यू गो ऑन द हायर एल्टीट्यूड्स, यू हैव टू गो थ्रू acclimatization at various stages, 9,000, 12,000, 15,000. It depends on which altitude you are going and for how long. If you are going there as, मतलब तुम्हारी परमानेंट पोस्ट है, वहां जा रहे हो, तो यू हैव टू डू 7 days हर जगह करना पड़ता है. 9,000 फीट की हाइट के ऊपर आपको एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है. एक्लिमेटाइज करने के लिए अपने बॉडी को ट्यून करना पड़ता है. लाइक ट्यून इन बेसिकली क्या करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम योर हैंड्स एंड लिम्स और फिजिकल एंड्योरेंस, उससे या तुम्हारी एंड्योरेंस के अलावा व्हाट उसमें होता है, व्हाट कंडीशनिंग वी हैव टू डू इज, आवर बॉडी स्टार्ट्स स्टेइंग विथ लेस ऑक्सीजन. जो एक्लिमेटाइजेशन वहां के जो वगैरह प्रोसेसेस है, मॉर्निंग में पीटी, फर्स्ट डे ओनली हल्की पीटी, फिर दूसरे टाइम ओनली वॉक, तीसरे दिन में फिर वॉक, तीसरे दिन हल्का वेट लेके, तीसरे दिन थोड़ा, चौथा दिन और थोड़ा वेट लेके, पांचवा दिन और थोड़ा हेवी वेट लेके, एंड टू द लॉन्गर डिस्टेंस. ऐसे करते करते 7th डे तक यू आर टेकिंग हेवी वेट फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक है. दैट फर्स्ट, फिर वहां पे फिर मेडिकल चेकअप होता है. देन दे टेक यू टू द सेकंड स्टेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन एट 12,000. फिर वहां पर भी ऐसी अलग अलग टेस्ट होते हैं. जो फर्स्ट स्टेज में हो गए, देन यू स्टार्ट विद द लेसर वेट, फिर सेकंड इसमें और थोड़ा वेट करते करते, देन यू हैव टू सी कि 12 to 15,000, 12,000 तक, 9,000 से 12,000 के बीच में, सो यू आर एबल टू सस्टेन एट 12,000 फीट. तो वो एक्लिमेटाइजेशन 7 days होता है. देन योर हार्ट, योर बॉडी, योर हार्ट कैन सर्वाइव विद दैट लेसर ऑक्सीजन ऑल्सो टिल 12,000, फिर ऐसी 15,000. तो इस तरह से यू कंडीशन योर बॉडी to live, to survive in depleted oxygen. सर, एक मुझे आपसे पूछना था, टेरर एंड पाकिस्तान, आप JNK में भी आपने सर्व किया हुआ है, आप उस सिचुएशन को कैसे आप देखते हैं? ये जो रेगुलर इन्फिल्ट्रेशन होती है पाकिस्तान के साइड से, टेरर जाते हैं, हाउ इज इंडिया प्रिपेयरिंग प्रोएक्टिवली? हम कैसे, हमारी आर्मी कैसे उस चीज को टैकल करने के लिए प्रिपेयर कर रही है? एंड ये जो सिचुएशन है, आपको क्या लगता है ये सिचुएशन न्यूट्रलाइज कभी होगा, और इट विल बी जैसा चल रहा है चलता ही रहेगा, विल बी ऑलवेज एट लॉगरहेड्स? बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व इतना जल्दी से नहीं होगा.
It won't. Okay. Now the reasons कई हैं. Now Pakistan had this thing that will bleed India with 1,000 cuts और पता नहीं क्या 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 क्या. This is how it started in 89, 88, 89 से creation. यह सब शुरू हुआ. उनका ये कैंपेन था कि we have to bleed India with 1,000 cuts होते हैं. So this is how they started with this, using the non-state actors or so-called terrorists or so-called infiltrators और मुजाहिदीन and all that. Whatever, जो भी नाम लेना है, पर हमारे लिए तो टेररिस्ट ही है. Right. And now proactively what and now अभी के जमाने में the present dispensation what it is doing absolutely right. सही कर रही है. Our diplomatic relations with other countries has actually isolated Pakistan as far as this terrorism is concerned. So this is one of the proactive stance at the top level, strategic level. So as you come down, जब हमारे लेवल पे अगर आप सोचो तो we do keep our intelligence, our own intelligence. We have got our intelligence organization which keep us giving feed. तो हम ये भी उनको स्टडी करते रहते हैं. एंड आज के तारीख में तो अभी काफी कम हो चुका है. हो रहा है. आई एम जस्ट नॉट, बट जब पहले जितना होता था वो उतना धीरे धीरे कम हो गया है. क्योंकि अभी आज की तारीख में अगर देखो तो पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है इकोनॉमिकली है, इतने भीखमंगे हो गए वो. तो अभी उनको देख एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू फीड देम, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन देम. एंड सिंपल जो टेररिस्ट है उनको कोई मतलब नहीं है वो इनके से. दे हैव टू जस्ट, उनको पैसा चाहिए, मरने मरने को तैयार है वो. और यहाँ पे इंडिया को मतलब इंडिया में खलबली करने का उनका इरादा होता है. बाकी कुछ नहीं. अगर वहां पे उनकी फंडिंग बंद हो जाए तो अपने आप ही दे विल ड्राई डाउन. ठीक है. और धीरे धीरे ड्राई डाउन हो ही रहा है. इनफैक्ट वहीं पे टीटीपी वाले उल्टा मार रहे हैं उनको, पाकिस्तान वालों को. जो बनाया, जिन्होंने बनाया उन्हीं को पीट रही है क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फंड. कुछ नहीं कर पा रहे. इनफैक्ट दे आर गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान ओनली. जब आप तो ऐसा, तो एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न प्रोएक्टिव तो हम लोग है ही. वी आर करते हैं. बट देन दिस प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू एंड सो अर्ली. सर 99 में जब कारगिल वॉर हुआ, you're I think already 5-6 years into your services, right? Yeah. 9 years, 5-6 years. 6 years into services. तो जब आप लोगों को ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है एंड नाउ ये कंप्लीट एक वॉर बन चुका है, सो वो कैसा फीलिंग आता है सर? क्योंकि उससे पहले जब कारगिल वॉर शुरू होने से पहले, मैं बिल्कुल भूल जा रहा हूँ, हमारे एक सोल्जर को उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से, मैं नाम बिल्कुल भूल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, जिनकी बॉडी फाउंड हुई थी बहुत ही खराब हालत में. आफ्टर दैट पूरा एक वॉर का सिचुएशन बना एंड फिर कैप्टन विक्रम बत्रा का भी नाम सबने सुना. तो सर जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है एज ए सोल्जर और आप जब वहां पे नहीं हो, आई थिंक यू आर सर्विंग समवेयर एल्स, नॉर्थ ईस्ट या कहीं पे. आई वाज नॉर्थ ईस्ट में था. या आई वाज नॉर्थ ईस्ट. हाउ इज दैट फीलिंग कि ऑब्वियसली एक तरफ आपको वो टेरेन भी बचाना है कि कहीं से इधर से कुछ शुरू ना हो जाए, बट एज ए सोल्जर क्या आपको नहीं लगता मुझे अभी वहां होना चाहिए एंड आई शुड किल दिस, सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, bastards? When this thing happened, we were in Northeast, and though I didn't take part in Kargil, nor our battalion took part in Kargil, but हमारा mobilization हो गया था. हमारा mobilization वहां से हो गया, but then the war खत्म होने आ गया था, इसलिए फिर ना हमको they told us to stop there only. तो हम लोग वहां से उठ के आसाम में आके रुक गए. तो नॉर्थ ईस्ट और ड्यूकर वहां पे थे, नागालैंड में थे, वहां से हम आसाम तक आए. तो उन्होंने बोला कि नहीं वहां पे जरूरत नहीं है. तो बट देन यहाँ पर वी वर कीपिंग फॉलोइंग दिस थिंग, फॉलोइंग द कारगिल दैट. तो बेसिकली जो ऑफिसर था, इट वाज सो बैड. लाइक द ऑफिसर का नाम था लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया. सौरभ कालिया.
if I'm not, yeah, Saurav Kalia, yes, you can forget it. तो वो था, तो they had gone पेट्रोलिंग के लिए गए थे. कारगिल वॉर स्टार्टेड वो विद दैट शेपर्ड कमिंग एंड टेलिंग कि वहां पर हमने कुछ मूवमेंट देखी है, विच जनरली नहीं होता है. फिर उसको कंफर्म करने के लिए पेट्रोल पार्टी भेजी गई थी अंडर सौरभ कालिया, और 5-6 का ग्रुप लेके गया था. लेफ्टिनेंट कालिया टुक दे, एंड they were caught by those Pakistanis, and they have actually gouged his eyes. हमारा खूब टॉर्चर किया उसको, वेरी बैड. एंड बहुत बुरा हुआ उसके साथ, ये हुआ. पर दैट वाज द फ्लैश पॉइंट. उसके बाद फिर हमने जब तक उनको खदेड़ा नहीं, तब तक पूरा बदला लिया हमने अपने आप से. बट सर, ये जब चीजें होती है, जैसे हमने जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते हैं, उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट अलाउड नहीं होता. नहीं नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या है, मतलब इफ दे हैव कॉट हिम, he is prisoners of war, Right. simple and straight, and they have to be treated as per the Geneva Convention. And Pakistanis, they didn't follow any convention, Geneva Convention, and they killed him, tortured him, and tortured him mercilessly. I think 9th June 99 की बात है, अर्ली जून 99, अर्ली जून 99. कब शुरू हुआ था? हाँ, जून में स्टार्ट हुआ. हाँ, 8th-9th जून की बात है. तो दैट वाज, हिज आईज वेर गॉज्ड, काट दिया था. मतलब इट वाज बैड. मतलब आई कांट एक्चुअली, I will not go deep into this. Yeah, I will not go deep into this. So before we move ahead, sir, मेरे आपके लिए सर बहुत 3 क्विक सवाल है. It's like a rapid fire. क्या आप वॉर मूवीज देखते हैं? The movies like Uri, LOC. Not much. Not much. I don't like. आपने कोई इसमें से कोई मूवी देखी है? हाँ, उड़ी देखी है. फिर देन आई सॉ बॉर्डर, आई सॉ लक्ष्य, आई सॉ LOC. देख तो लेता हूँ, पर आई डोंट, इतना मजा नहीं आता. You cannot connect with that. No, I connect partially. I connect. बट ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, बट एक्चुअली आई डोंट लाइक. मतलब यार कुछ वो ना, फिर जब कुछ गलत दिखाते हैं तो मेरे को हजम नहीं होता. आई डोंट लाइक इट ओनली, इसलिए आई डोंट वॉच. So out of any of these movies, be it प्रहार देखी मेरे को. प्रहार तो मैंने कितने बार देखी. नाना पाटेकर one? वो तो था ना, बिल्कुल. इट वाज सो क्लोज टू द रियल थिंग बिकॉज ही वर्कड फॉर इट. ही वाज देयर इन कमांडो स्कूल. ही वर्कड फॉर इट. So my second question to you is, out of all the areas इंडिया में जितने भी आप जगह पे अब तक आप रहे हैं, आपने सर्च किया है, which is your most favorite place? जहाँ सर्व किया मैंने, वो सब, इन सब में से आपका सबसे फेवरेट जगह कौन सा? नॉर्थ ईस्ट. So my third question is, which is your favorite weapon of all time? Weapon of all time. Favorite weapon of all time. यार ऐसे तो बोल रहे. AK-47 भी अच्छी लगती है मेरे को. AK-56 अच्छी लगती है. उजी अच्छी लगती है. फिर क्या, MP5 भी अच्छी है. इट डिपेंड्स तुम किस काम के लिए लेके जा रहे हो. So it depends on situation to situation. जब जिस काम के लिए आप जा रहे हो. इंसाज 5.56 पर इट हैज गॉट ओन लिमिटेशन. एक इससे पहले होती थी 7.62 mm SLR. दैट वाज फैंटास्टिक. It used to lacerate. Okay. I will just tell you. देखो, जहां तक मेरा नॉलेज है, what I can understand is like 7.62 क्या होती थी, जहां वो घुसती थी अंदर, वो राइफलिंग होती थी, उसके अंदर से फाड़ते, और उसकी स्पीड भी बहुत होती, मजल वेलोसिटी काफी होती. तो अंदर ना बॉडी को ऐसे चिरती निकल के बाहर से निकलती थी. तो उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री छोटी होती थी, पॉइंट ऑफ एग्जिट वाज बिग. एग्जिट वुड बी लार्जर. वो लैसरेट करते थे. तो 5.56 में अगर क्लोज है तो मार सकते हैं, लेकिन जैसे दूर है उसको फायर किया तो वो ज्यादा इंज्योर हो जाता है. नाउ इसमें एक फायदा है, वो ये सोच के किया है कि अगर दुश्मन का कोई बंदे को हमने इंज्योर कर दिया, क्योंकि अगर मारा जाता है तो उसको तो वही छोड़ के फिर बाकी दे कैन
मतलब दे विल बी देयर इन द बैटल। पर एक को लगी है, चोट लगी है, बहुत सीरियसली घायल है, उसके साथ 2 बंदे और अटक जाते हैं। ओके, तो इतने उसके टैक्टिकली सोच के वेपन को डिजाइन किया गया। हाँ, उसको फिर अभी जैसे मेरे को लगे मेरे साथ तो 2 बंदे राइट। उसको उठा के लेकर जा, और 3 हो गए ना एक की जगह, हाँ। 3 आर इनइफेक्टिव। ओके। तो इनइफेक्टिव करने के लिए दिस व्हाट आई कैन लॉजिकली मैं सोच सकता हूँ, फ्रॉम माय परसेप्शन, फ्रॉम माय व्यूज। आपने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में पूरा एक हैंडबुक दे दिया है, कैसे आर्मी में एंट्री करते हैं, ट्रेनिंग कैसी होती है, तो यंगस्टर्स के लिए वो एक काफी ज्यादा डिटेल्ड एक व्यू मिला है। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू एक पर्टिकुलर मैसेज जो आपकी आज के जेन जी को आप देना चाहते हैं, वो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू आर्मी, और एज ए जनरल व्यू आप क्या बताना चाहते हो, कि कोई मैसेज आपकी तरफ से मैं यंगस्टर्स को। जेंजी को यही बताना चाहता हूँ कि whatever you want to, I'm just not talking about army only, joining Right. army, but whatever you have got aims in your life, firstly, don't be aimless. You have to have a aim in your life. क्या करना है? A man without aim is lifeless. Right. He has to have an aim. अगर आप मेरे को ये बताओ, एक ही दिन का ले लो, आज कुछ काम नहीं है हमको, आज हमने आज के लिए कुछ एजेंडा रखा ही नहीं है, सर समझ में नहीं आएगा घर में क्या करूं, करेक्ट? बोला आज मेरे को आज वहां जाके आई हैव टू जस्ट कंप्लीट दिस ये डॉक्यूमेंट्स मैंने कंप्लीट करने, तो राइट फ्रॉम द मॉर्निंग से उठे तब से यू उसी की तैयारी में लगे रहते हो, करेक्ट? एग्जैक्टली। सो सेम थिंग, लाइफ में अपना एम रखो, और वो एम को अचीव करने के लिए यू हैव टू एंड्योर, टेक ऑल दो स्टेप्स विच विल टेक यू क्लोजर टू योर एम अचीव करने के लिए। उसके एम अचीव करने के लिए जो जो रिसोर्सेस है उसको उसको हार्नेस करो, उसको टैप करो, यूज देम एंड जस्ट मूव टुवर्ड्स योर एम। अगर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, सो बी इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स। ये देखो पुराने एग्जाम पेपर में कैसे आया, हाउ डू दे क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं, स्टडी। मेंस में हाउ टू गो अबाउट इट, गो फॉर मेंस, देन इंटरव्यू में कैसे कर, जस्ट गो प्लान टू, you want assistance by way of going on the in institutes, training institute or coaching institutes, go then, but work towards it. आर्मी में ज्वाइन करना है, देन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए भाई अलग को चाहिए, यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड व्हिच आई टोल्ड यू, यू हैव टू हैव दैट दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, यू हैव टू हैव दोज। अगर तुम्हारे में है, वेल एंड गुड, improve them. If you don't have, inculcate them, inculcate some hobbies. अपना रवैया बदलो, लोगों के प्रति रवैया बदलो, अपने खुद की तरफ रवैया बदलो, देखने का नजरिया बदलो। और मैं सिर्फ बच्चों को ही नहीं बोल रहा, जेन जी को भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जनरेशन वालों को भी बोल रहा हूँ, जिनके बच्चे अभी इस पायदान पे खड़े कि वेयर दे आर गोइंग, they want to join, they are in that age bracket जहां पे they have to select their, they have to, मतलब अभी they have to launch themselves into their careers। वो पेरेंट मेरे जैसे मेरे जनरेशन वालों को भी आई वुड लाइक टू से कि देम एनकरेज करो, जहां जहां वो जो वो करना चाहता है वो करना, डोंट इंसिस्ट योर दिस थिंग, थोपो मत। मैं फौजी हूँ, अगर मेरा बेटा अगर फौज में नहीं जाना चाहता, देयर इज नो पॉइंट ना, उसको मैं धकेल के, देयर इज नो पॉइंट, उसको सॉफ्टवेयर में जाना है, उसको आईटी में जाना है, लेट हिम गो। पर यही है, जहां जाते हो, जो करना चाहते हो, बेस्ट करो विद अ क्लियर माइंड कि यही करना है, विद अ क्लियर माइंड, मैंने ये करना है, करो। और जो चीज तुमको अच्छी लगती है और तुम वो करियर चुनते हो, यू विल डू वेरी गुड इन द करियर। किसी की हॉबी होती है फोटोग्राफी, देन परस्यू करियर इन दैट, डू दैट। जरूरी नहीं सबने इंजीनियर, डॉक्टर और यही बनना है,
नेशनल जियोग्राफी के और डिस्कवरी चैनल के फोटोग्राफर्स बन जाओ एक से एक, दे अर्न ऑल्सो वेल। और जिसकी हॉबी उसका करियर बनता है ना, ही रीचेस ऑन द टॉप। Absolutely. 100% agree. जिसकी हॉबी उसका करियर बनता है, he is on the top. That is what I want to say. So main is just have that मछली की आंख देखो और अर्जुन की तरह तीर मारो पानी में देख के, ठीक है। और पानी भले ही हिलता रहे, पानी हिलता रहे मतलब there might be many distractions coming in life, still you have to overcome those ripples in water, still aim the eye of the fish and release the arrow. Colonel Tushar Joshi, it was an absolute honor for us, sir, and we'd like to salute you for your services to the nation. जो सर आपने किया है वो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं अपनी इस लाइफ में। एंड काइंड ऑफ पॉडकास्ट जो आपने आज सर जितनी सारी चीजें बताई है ना, ये कोई अगर, मैं सिर्फ आर्मी में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है उसके लिए एक हैंडबुक बन सकता है कि अगर आप इतने क्लियर माइंड के साथ, जैसे आपने बताया अपने ट्रेनिंग के बारे में, स्टार्टिंग से लेके एक बच्चे के दिमाग में वो आया कि मुझे ये करना है, फ्रॉम देयर टू बी ए मिलिट्री लेजेंड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ guts and lot of determination. So sir, again, hats off to you and thank you for being here on the show and giving us the chance to speak to you. Thanks a lot, sir. Thank you.